and everything. My name is Krishna Tejwani, and today I am presenting my seminar on protein synthesis in prokaryotes and eukaryotes, which means translation. What is protein synthesis? Protein synthesis is a process in which protein is synthesized from the mRNA. The mRNA is the nucleotide of mRNA is coded by the ribosome and protein is synthesis. As you can see in the diagram, the formation of RNA from the DNA is known as transcription, and formation of protein from the RNA is translation. So today I am talking about translation. Now, requirement of translation is mRNA, tRNA, and ribosome. First of all, we are talking about the mRNAs. mRNA in prokaryotic translation, the mRNA translation is coupled with transcription. We all know in prokaryote, translation and transcription occur together. mRNA contains the ribosomal binding site called as Shine-Gargano sequence. You can see in this diagram. This Shine-Gargano sequence is a particular sequence in which the ribosome binds. This is just a ribosomal binding site. After when the smaller subunit of the ribosome bind to the Shine-Gargano sequence or ribosomal binding site, it starts scanning the mRNA, and when it reaches to start codon, which is AUG, from here the larger subunit of ribosome is also bind and the translation starts. So the Shine-Gargano sequence is particularly the ribosomal binding site. In prokaryotic mRNA, multiple open reading frame is present, which is, and that's why it is called as polyhistronic. What is polyhistronic? It will be explained in this next diagram. You can see there is a prokaryotic RNA. There is multiple start codon and stop codon present. So single mRNA can code 3 different proteins. But in eukaryotic there is only a single open reading frame present, and a single type of protein can be coded by a single mRNA. So in prokaryotic 70S ribosome used. It has a smaller subunit of 30S subunit, recognized Shine-Gargano sequence. Larger subunit is 50S subunit, and it is the catalytic unit. Larger subunit bind to the smaller subunit when small subunit already recognizes the start codon, which is that. When the smaller subunit reaches the start codon, then the larger subunit bind on this. Then mRNA in eukaryotes, single ORF means open reading frame present in the eukaryotes. 80S ribosome involved in eukaryotic translation. Now this 5-UTR region is the region 5-untranslated region, मतलब that region of mRNA that cannot translate it, इसमें से protein का synthesis नहीं होता है. तो ये क्या 5-UTR sequence containing Kozak sequence. जैसे कि प्रोकैरियोट में देखा Shine-Gargano सीक्वेंस की, वैसे इसमें कोजैक सीक्वेंस है, पर थोड़ी अलग है क्योंकि Shine-Gargano सीक्वेंस सिर्फ राइबोसोमल बाइंडिंग साइट थी, उसके बाद में स्टार्ट कोडन बाद में आ रहा था, बट द कोजैक सीक्वेंस इटसेल्फ हैज द स्टार्ट कोडन. तो जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है यूकैरियोट में वो 5 प्राइम कैप की तरफ होती है, क्योंकि हमारा यूकैरियोटिक mRNA में 5 प्राइम कैपिंग होती है. तो स्मॉल सबयूनिट बाइंड टू द कैप बाइंडिंग प्रोटीन. जो राइबोसोमल स्मॉल सबयूनिट है वो कैप बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होती है, न कि कोजैक सीक्वेंस से. कोजैक सीक्वेंस के जब वो स्कैन करते हैं कोजैक सीक्वेंस तक आता है, फिर वहां से ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि कोजैक सीक्वेंस में AUG यानी स्टार्ट कोडन प्रेजेंट होता है. mRNA कंटेन डिफरेंट कोडन. हमारे mRNA कुल 64 ट्रिपलेट होते हैं कोडन के, यानी कि जैसे A T G मिलके तीनों मिलके एक प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, एक अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं. तो ऐसे 64 डिफरेंट कोडन्स प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स के अलग-अलग सिंथेसिस के लिए. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द tRNA व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द ट्रांसलेशन. तो tRNA की स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें एक डिस्क्रिमिनेटरी बेस होता है और ये 3 प्राइम्स का एंड होता है. यहाँ पे ये अमीनो एसिड को सर पे लोड करके लेके आता है ताकि चेन जुड़ सके, पेप्टाइड चेन. तो यहाँ पे इसका ये एक्सेप्टर आर्म होती है, इसके ऊपर अमीनो एसिड लोड होता है, एंड दिस इज एंटीकोडोन लूप. ये आरएनए के ऊपर जाके अटैच होता है और डिटेक्ट करता है कि परफेक्ट आरएनए के कोडोन के ऊपर परफेक्ट अमीनो एसिड सेट हो रहा है कि नहीं. ये तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये इसी का सेकेंडरी और स्टेबल स्ट्रक्चर है. इसके ऊपर मैंने बता दिया एक्सेप्टर आर्म होती है, डिस्क्रिमिनेटरी रीजन होता है, एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय H bonding H bonding हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब this is anticodon of tRNA. There are 35 different tRNA present, but there are 64 different codon present, as I already said. So which means one tRNA is code for multiple codons, because we have only 35 tRNA and 64 codons. So one tRNA can code multiple codons. Or why? How it is happened? Just because of this bobble position. In the loop of tRNA, there is a on the first
Yes, first. फर्स्ट कोडॉन पे डीआरएनए फर्स्ट और इनके थर्ड एमआरएनए के थर्ड पे और एंटीकोडॉन के फर्स्ट वाला जो था अपना न्यूक्लियोटाइड, इसमें इलास्टिसिटी होती है थोड़ी सी, ताकि ये चेंज जैसे जी है तो वो सी से ही बाइंड कर सकता है और यू से ही बाइंड कर सकता है। तो इस एक सिंगल जो टीआरएनए है वो दो कोडॉन से बाइंड कर रहा है, इस तरीके से इसमें एक आई भी होता है आइनोसिन जो कि 3 से 4 कोडॉन को बाइंड कर सकता है। तो which means the tRNA codes more than one codon, और इसको वोवल पोजीशन बोलते हैं, लेकिन वोवल नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। Now this is the codon table, as you can see in the diagram, just like CCU, CCC, CCA and CCG, they are triplets. So the 4 triplets are coding for only for proline, यानी कि one amino acid. So we are total have 64 codons, but we are only in biological system only 20 amino acid present. So there are multiple codons coding a single amino acid. This is the codon table in which this is the start codon AUG and these 3 are stop codons UAA, UAG and UG. Now the two things will done, ribosome and tRNA. This is the enzyme tRNA synthase. 20 different tRNA synthesis enzyme are there for 20 different amino acids. And it load 20 different amino acids on tRNA. Step 1 is charging. So first of all, the amino acid is getting charged. There is it hydrolyzed one ATP, and AMP is bound on that amino acid. First of all, the first ATP is used on that place, and thus amino acid is getting charged. Now this has 3 major sites. One is catalytic pocket, adenine pocket, and binding site. This is the catalytic pocket, major catalytic pocket. This is editing, and this is third one is binding site. तो जो बाइंडिंग साइट पे क्या होता है, टीआरएनए आके बाइंड करता है। यहाँ पे पहले चेक करते हैं इसके, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर सीक्वेंस होती है, डिस्क्रिमिनेट न्यूक्लियोटाइड को चेक करता है कि ये डिस्क्रिमिनेट न्यूक्लियोटाइड है जो मान लो कि ये मिथ्योनिन है, तो ये जो टीआरएनए ये मिथ्योनिन का है कि नहीं है वो ये डिसाइड करता है, चेक करता है। अगर ये मिथ्योनिन का ही होगा तब ये इसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ये अमीनो एसिड आके इससे बाइंड होता है। एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही एक स्पेसिफिक एंजाइम टीआरएनए सिंथेस का भी बाइंड कर सकता है। अगर ये मिथ्योनिन का है तो इसको लाइसिन बाइंड नहीं कर सकता, अर्जिनिन बाइंड नहीं कर सकता, मिथ्योनिन ही बाइंड करेगा। जब मिथ्योनिन आके इसको बाइंड करता है उसका टीआरएनए नीचे पड़ा होता है। अगर मान लो मिथ्योनिन से कोई छोटा आ भी गया इसके अंदर कैटलाइटिक के अंदर, तो वो एडेनिन पॉकेट के अंदर से काम होता है। लॉन्ग अमीनो एसिड अगर आ जाए, लॉन्ग आर्च तो आ ही पाएगा, अगर स्मॉल साइज का आ भी गया तो वो यहां से रिमूव ऑफ कर दिया जाता है, एडेनिन पॉकेट से निकाल दिया जाता है। तो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पर्टिकुलर टीआरएनए से बाइंड करने का काम करती है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चार्जिंग होता है अमीनो एसिड का, फिर लोडिंग ऑफ दिस चार्ज अमीनो एसिड टू टीआरएनए करती है और टीआरएनए सिंथेस कंप्लीट फर्दर रिएक्शन, आपकी रिएक्शन कंप्लीट करके आप देख सकते हो चार्ज टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को लोड कर दिया। ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ताकि गलत अमीनो एसिड लोड ना हो जाए और जुड़ ना जाए यहां पे। उसके बाद इसके तीनों मैंने बता दी, कैटलाइटिक पॉकेट होती है जो प्रूफ रीडिंग का काम करती है। ओनली रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड कैन एंटर या बाइंड इनटू द टीआरएनए। देन एडेनिन पॉकेट अगर कोई छोटा आ भी गया कैटलाइटिक पॉकेट के अंदर तो एडेनिन पॉकेट से बाहर निकल जाता है। एंड देन बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज करती है टीआरएनए का डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियोटाइड, जो मैंने आपको बताया था ऊपर होता है सीसीए करके पास में होता है, उसको आइडेंटिफाई करके पता लगा दी पर्टिकुलर एक्टिविटी। नाउ वी आर ऑल लर्न ऑल द कैरेक्टर्स। अब स्टोरी को भी शुरू होनी बाकी है। ट्रांसलेशन जो होता है वो 4 प्रोसेस है मेंस में, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन और लास्ट में राइबोसोम का रिलीज। इनिशिएशन कैसे होगा, तो 30s राइबोसोमल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स। 30s जो राइबोसोमल यूनिट होती है, एक्चुअली उसमें देखा जाए तो पहले आगे कुछ डायग्राम दिखाया जाए, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका एक्सेप्टर जो है गैप होता है, उसके बाद इसका प्रोटीयोलाइटिक एक्टिविटी शायद यहाँ हो या, और एक की होता है कि एग्जिट आर्म। तो जो पहले इसका पहले इन तीनों आर्म के ऊपर IS इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंडेड या लोडेड होते हैं, साथ में GTP भी होता है। देखो ये रोक के बैठे टीआरएनए भी नहीं आ सकता और 50S सबयूनिट भी नहीं आ सकती है, इसलिए इसको पूरा रोक के बैठे। When the shiny organo sequence recognized by the ribosome, फिर उसने आगे स्कैनिंग करी, AUG आया यानी स्टार्ट कोडॉन आ गया, तब जाके टीआरएनए रिकॉग्नाइज स्टार्ट कोडॉन AUG एंड IF3 फर्स्ट रिलीज। मेजर वाली IF3 है, ये पहले रिलीज होगा, फिर उसके बाद आपके IF2 और IF1 भी रिलीज हो जाएंगे और यहां पे हमारा सेकंड GTP भी यूज हो जाएगा, GTP में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जब ये सब हट जाएंगे तब लार्जर सबयूनिट आके बाइंड होगी और टीआरएनए भी आके बाइंड होगा और तभी यहां से आके चलेगा। तो ये इनिशिएशन के पहले ये रोक के बैठते हैं, हटाना पड़ेगा। नाउ देन द इलोंगेशन में जैसे लिखा हुआ EF2, ये 3 मेजर इलोंगेशन फैक्टर्स ये तीनों हेल्प करेंगे। इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल, TU मींस इलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल एंड इलोंगेशन फैक्टर, ये एक्चुअली नाम नहीं आ रहा मेरे को, ये बाद में आएगा, आप इसमें देख लेना।
तो मेन अभी कहानी इन दोनों की टीयू की और टीएस की है। ईएफटीयू पहले आप डायग्राम से समझ लेते हैं। देख लो ये ईएफटीयू है, इसका काम होता है कि टीआरएनए को डिलीवर करना। ईएफटीयू आएगा जीडीपी बाउंड स्टेट में होता है, ये आपके इधर किसमें ध्यान रखना, ए आर्म में यानी एक्सेप्टर आर्म में। ए थी, पी थी और ई थी, ये एग्जिट के लिए होती है। तो ए में ला करके सबसे पहले ईएफटीयू टीआरएनए को बाइंड करता है। पहले ये नीचे से एंटीकोडॉन बाइंड करते हैं और पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर ठीक है कि नहीं है। पर्टिकुलर एंटीकोडॉन पे ही वो टीआरएनए आके बाइंड कर सकता है, वरना नहीं करेगा। बार-बार टीआरएनए आता है पर जो पर्टिकुलर होता है वो इससे बाइंड कर पाता है। फिर ईएफटीयू यहां से निकल जाता है, और जब ईएफटीयू यहां से निकला तो वो जीडीपी में चला गया। तो ये ईएफटीयू साइकिल होती है, क्योंकि अब ईएफटीयू को वापस जीडीपी में करना जरूरी है, तभी दूसरा टीआरएनए लेके आ पाएगा। तो इस ईएफटीयू थर्मो अनस्टेबल को अपना जीडीपी दे देता है थर्मोस्टेबल यानी टीएस। ईएफटीयू को जीडीपी देता है ईएफटीएस, और ईएफटीएस खुद जो है वो जीडीपी में चला जाता है। देखो जीडीपी में था टीयू, तो टीयू ने इससे ले ली और खुद तो जीडीपी में आ गया, इसको जीडीपी में कर दिया। नाउ अगेन दिस इज रिकॉग्नाइज अनदर टीआरएनए को रिक्रूट करेगा वापस से एक्सेप्टर आर्म के अंदर। तो ये साइकिल में चलती रहती है, और ये इधर लिखा हुआ भी है कि ईएफटीयू डिलीवर करता है टीआरएनए को ए साइट पे, और जीडीपी ऑफ ईएफटीयू इज कन्वर्टेड टू जीडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ईएफटीएस। वापस को ईएफटीएस यानी थर्मोस्टेबल वाला अपनी जीडीपी दे देता है। डिफरेंट अमीनो एसिड विद टीआरएनए कम्स इन अ साइट बट ओनली स्टेबल वन इज इंटरैक्ट विद द कोडॉन। यानी कि इस कोडॉन पे मान लो कि ये सीसीसी है और तो ऊपर वापस से जीजीजी चाहिए, तो कोई भी दूसरा आएगा तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा, जीजीजी ही इससे आके बाइंड करेगा। इसके बाद कंटिन्यू में है कि कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है। ईएफटीयू की जीडीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है जीडीपी में, बट 3' टीआरएनए एंड पेप्टाइड ट्रांसफरेज को, हां अब इसको अगर आप डायग्राम समझ सकते हो कि जब अपन ने ट्रांसफर कर दिया इसको, अब इसकी तो जीडीपी अपन निकाल दी, तो ये क्या करेगा कि जो इसका टीआरएनए है ना उसको टिल्ट कर देता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज साइड पे। कैसे टिल्ट करेगा, अब जो टीआरएनए है इसका ये टीआरएनए का बेस तो है इसकी एक्सेप्टर साइड पे, और जो इसका हेड रीजन है वो ऐसे टिल्ट हो जाता है, ये एक्सेप्टर साइड पे और ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज साइड पे। तो इसको हाइब्रिड स्टेट बोलते हैं। कोई भी टीआरएनए हाइब्रिड स्टेट में तभी स्टेबल रह सकेगा जब वो परफेक्टली कोडॉन के साथ चिपका हुआ होगा, या फिर आप बोल दो अटैच हुआ होगा। अगर मान लो कि ये यू फॉर एग्जांपल सीसीसी है और उसका जीजीजी नहीं है, कुछ भी और है, तो ये हाइब्रिड स्टेट में जाते ही हट जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि दिस स्टेट नोन एज हाइब्रिड स्टेट। जब क्या हुआ कि इसने इसको T3' एंड को पेप्टाइड ट्रांसफरेज यानी T साइड में टिल्ट कर दिया था। इफ इनकरेक्ट कोडॉन प्रेजेंट होंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इसमें। फिर पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी। इस एक्टिविटी में क्या होता है भाई कि जो P में है ना लॉन्ग पेप्टाइडल चेन होती है, तो पूरी लॉन्ग पेप्टाइडल चेन उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के ऊपर आके बाइंड करती है। एक अमीनो एसिड नहीं जाके उसको बाइंड करेगा पेप्टाइडल चेन के ऊपर, जबकि पूरी पेप्टाइडल चेन को उठा के एक अमीनो एसिड के ऊपर बाइंड कर दिया जाता है। अब नाउ जब ऐसा हो जाएगा तो ये जी आएगा, इसमें आगे लिखा हुआ है पढ़ेंगे, ये इसको पुश करेगा। अब ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला एग्जिट होती है, तो एग्जिट चैनल से ही बाहर निकल जाता है। आगे लिखा हुआ है कंटिन्यू ईएफजी को ट्रांसलोकॉन बोलते हैं, जो मुझे पहले नाम याद नहीं आ रहा था। ईएफजी ट्रांसलोकॉन नोन टू ही पुश करता है न्यू टीआरएनए को इस साइड से। नाउ द टीआरएनए एग्जिट आउट फ्रॉम हियर एंड अगेन साइकिल चलती रहती है, नया टीआरएनए फिर से आता है और नया टीआरएनए फिर से लोड होता है और पुश करते हैं ट्रांसलोकॉन आके और हट जाता है। देन लास्ट इज टर्मिनेशन ऑन द स्टॉप कोडॉन, जो आपने देख लिया यूएए आता है। तो यूएए को कोई भी टीआरएनए बहुत सारे आते हैं पर उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, कोई भी न्यू स्टॉप कोडॉन है उसका कोई टीआरएनए उसको बाइंड नहीं कर पाता। व्हेन नो टीआरएनए रिकॉग्नाइज दिस तो कोडॉन ट्रांसलेशन फाइनली स्टॉप हो जाता है। वहां पे आरएफ एंड रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे, कम एंड जीजीक्यू मोटिफ बनाते हैं व्हिच ट्रांसफर द पेप्टाइडल चेन, जो कि पीम बनी हुई पूरी लंबी, उसको वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर देते हैं एंड पेप्टाइडल चेन वहां से रिलीज हो जाती है, राइबोसोम भी डिसोशिएट हो जाते हैं और टर्मिनेशन हो जाता है। ब्लड फोटो है, ये देखो ये तीनों थे रिलीजिंग आरएफ रिलीज फैक्टर थे, इसमें से रिलीज फैक्टर आता है और इसको पूरी को हटा के फिर ये वाटर को ट्रांसफर, क्योंकि इधर तो कोई है ही नहीं टीआरएनए, उस पे ट्रांसफर नहीं करती, वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर देता है। अब इनिशिएशन